بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاں ایک طرف پاکستان کی سیاست بے یقینی کا شکار ہے، وہیں دوسری طرف ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے وزارت خزانہ نے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس پر بات ہوگی اسی بلیٹن میں۔ اس بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق اور میں ہوں عروبہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اہم خبر کے ساتھ۔ ایوان صدر اسلام آباد میں اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ صدر مملکت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھی نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر اسلام آباد میں اعزازات دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ صدر مملکت نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ صدر مملکت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو بھی نشان امتیاز ملٹری سے نوازا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ارشد شریف از خود نوٹس کیس وزارت خارجہ نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کینیا اور متحدہ عرب امارات میں موجود پاکستانی مشن سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ کینیا اور متحدہ عرب امارات کی اتھارٹی سے کیس کی تفتیش اور شواہد کے حصول کے لیے رابطے میں ہیں۔ کینیا کی اتھارٹیز کے ساتھ روابط کے جلد مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ پاکستان میں کینیا ہائی کمیشن نے یقین دہانی کروائی ہے، شواہد جمع کرنے اور تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کینیا ہائی کمیشن جلد حتمی نتائج پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا۔ مزید اس تمام تر معاملے میں کیا پیش رفت ہوئی، جانیں گے حسین احمد سے۔ حسین احمد بتائیے گا۔ جی دیکھیں، سپریم کورٹ میں ارشد شریف از خود نوٹس کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی، تاہم وزارت خارجہ کی جانب سے تحریری جواب 2 صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کینیا اور متحدہ عرب امارات میں موجود پاکستانی مشن سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ دفتر خارجہ کینیا اور متحدہ عرب امارات کی اتھارٹی سے کیس کی تفتیش اور شواہد کے حصول کے لیے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی کینیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تفتیش میں معاونت کی درخواست کی ہے۔ جواب میں کہا گیا کہ کینیا کی اتھارٹیز کے ساتھ روابط جلد مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے، جبکہ پاکستان میں کینیا ہائی کمیشن میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ شواہد جمع کرنے اور تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور دفتر خارجہ اسپیشل جے آئی ٹی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گا۔ کیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی، 12:30 بجے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کرے گا۔ جی، سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ حسین احمد اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کی جانب سے ہاؤس آف لارڈز میں مسئلہ کشمیر پر آفیشلی بحث کروانے پر لارڈ قربان حسین کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں کل جماعتی کشمیر کمیٹی کے ممبران اور دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے لارڈ قربان حسین کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا، لارڈ قربان حسین نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کی آواز بلند کر کے کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں ہونے والی پروکار تقریب میں کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کے صدر چودھری شاہ نواز، سیکریٹری جنرل صاحبزادہ فاروق القادری، سرپرست اعلیٰ مولانا فضل احمد قادری نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر رابطہ کمیٹی میں شامل مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، کونسلرز اور کمیونٹی کے احباب نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ لارڈ قربان حسین نے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر برطانیہ کا پیدا کردہ ہے۔ برطانیہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اقوام متحدہ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان، بھارت اور کشمیری قیادت کو مذاکرات کی میز پر لائے۔ لارڈ قربان حسین نے ہاؤس آف لارڈ میں اپنی تقریر میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، کشمیر میں بھارتی فوج کی مداخلت اور دہشت گردی، اقوام متحدہ کی قراردادوں، کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، کشمیری قیادت کی بھارتی جیلوں میں مسلسل نظر بندی اور ان کی رہائی کے حوالے سے پرجوش خطاب کیا، جس کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ Freedom of expression, both offline and online. Human rights defenders, including activists, journalists, students, lawyers, and actors, continue to face intimidation and harassment. Independent investigation revealed a massive unlawful surveillance apparatus being used by the government against human rights defenders,
violating their rights to privacy, non-discrimination and data protection. The foreign contribution law was misused to crack down on human rights NGOs. Police and security forces used excessive force against members of minority communities and farmers protesting peacefully against laws on farming. Courts undermined the rights to a fair trial and delay hearing crucial cases involving violations of human rights. लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा कि इंशाअल्लाह हाउस ऑफ लॉर्ड में की गई तकरीर के मस्बत नताइज सामने आएंगे। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम से मुतालबा किया कि वो बरतानिया में अपनी नई नौजवान नस्ल को आगे लाने के लिए उन्हें तालीम याफ्ता बनाएं। यही नौजवान नस्ल बरतानिया के ऐवानों में जाकर कश्मीर का मुकदमा लड़ेगी। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड कुर्बान हुसैन, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा नजीर कुरैशी, शाहनवाज चौधरी और दीगर ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। खराज तहसील पेश करते हैं। हमें ऐसे MP और ऐसे हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर चाहिए या ऐसे काउंसलर चाहिए जो कश्मीर काज को हाईलाइट करें। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी के प्लेटफार्म पर ये आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह इनकी रविश पे चलते हुए बाकी जो लॉर्ड्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी चलें, क्योंकि वहाँ मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम का बाजार इंडिया ने गर्म कर रखा है और हमारी माएँ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का रास्ता देख रही हैं, बेटियाँ मोहम्मद बिन कासिम का रास्ता देख रही हैं और जवान जो है महमूद गजनवी का रास्ता देख रहे हैं। लॉर्ड कुर्बान साहब ने जो हाउस ऑफ लॉर्ड में डिबेट करवाई है कश्मीर के मसले पे, उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ किया कि क्या कुछ मतलब कश्मीर के अंदर जो हालात की तब्दीली हो रही है और कश्मीरियों पे कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आम कश्मीरियों को उसके आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के अवानों में जो आवाज़ उठती है उस पे वो असर अंदाज होती है। अल्लाह करे कि नई जो हमारी कश्मीरियों की नस्ल है, इनके दिलों में भी जो मसला कश्मीर को उजागर करना पड़ेगा, उनको साथ मिलाना पड़ेगा। जब तक हमारी नई नस्ल हमारे साथ शामिल नहीं होगी उस वक्त तक हम इस काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये फैसला किया है कि हम मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और सितम जारी है उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनको मिलेंगे, यहाँ के MPs को मिलेंगे, उनको बावर कराएंगे कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, जानवरों के हकूक़ पे है, क्या मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले इंसानों के कोई हुकूक नहीं है। हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो जारी जुल्म है उसको बंद किया जाए। जो प्रेशर बढ़ता है तो हुकूमत भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर पार्लियामेंट के तमाम अरकान जो है मुख्तलिफ पार्टियों से एक बात पर इत्तेफाक करते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, और जब वो प्राइवेटली बात करते हैं अपनी हुकूमत के अंदर तो कम अज़ कम ये चीज़ें ज़रूर डिस्कशन का हिस्सा बनती हैं। और हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि जब मुतल्लिका गवर्नमेंट से यानी इंडियन गवर्नमेंट से अगर बात होती है प्राइवेटली तो वो चूँकि यहाँ प्रेशर बढ़ता है पार्लियामेंट के अंदर, तो इस प्रेशर को की बुनियाद पर वो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के साथ बात भी करते हैं। कश्मीर से जिनका ताल्लुक है वो इसके नुमाइंदे हैं। तहरीक तो वहाँ पर चलती रहेगी लेकिन अपना हिस्सा इसमें पूरा करें। अब ज़रा वो फैमिलीज़ को आप देखिए जो आज पिछले 30 साल से नहीं 47 साल से जो इस चक्की में पीछे जा रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं तालीम में पीछे रह चुके हैं, जिनका ख़ानदान जो है, जिनके घर जो है उनको कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। ख़ासकर जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनकी तालीम मुतासर हो रही है। अल्लाह का शुक्र है हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं उस सिलसिले में, ताकि जो लड़के हैं हायर स्टडीज़ में वो जो PhD कर रहे हैं उनकी हम माली मदद करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर और अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन के वालिद चौधरी सोहबत अली मरहूम की रूह की एसाले सवाब के लिए दुआए मगफरत भी की गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में मारूफ माहिर तालीम काउंसलर शाहिद यूनुस ने कहा है, बरतानिया में बड़ी तादाद में पढ़े लिखे साउथ एशियाई नौजवान काबिलियत होने के बावजूद अपनी तालीम के मुताबिक मुलाजमत नहीं करते। नौजवान IT के शोबे में चंद हफ्ते ट्रेनिंग करके माहाना हजारों पाउंड्स कमा सकते हैं। IT के शोबे में लाखों नौकरियां लोगों की राह देख रही हैं। शाहिद यूनुस ने BHFU के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए तलबा को कई मुफीद मशवरे भी दिए। क्या कहा, आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में मरूफ माहिर तालीम शाहिद यूनुस मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे बेसिकली यहाँ पर जो है वो लंदन के पास एक इलाका है रेडिंग,
वहाँ पर जो है ये एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और इनका ये मिशन है कि हमारी जो एशियाई कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होने के बावजूद जब वो यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर इस तरह की जॉब्स करते हैं शायद कि जो उनकी तालीमी मेयार के मुताबिक नहीं होती। तो ये जो है वो लोगों को एम्पावर करने के लिए, ख़ास तौर पर IT सेक्टर में एम्पावर करने के लिए इन्होंने एक बिड़ा उठाया हुआ है और एक अपने इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों को ट्रेन करते हैं और फिर वो लोग जो है वो बड़ी आला जॉबों पर जाते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ 92 न्यूज़ का कि आप मुझे मौका दे रहे हैं इस बात करने का। आपने सवाल किया, ये बहुत अहम सवाल है। मेरा ख़ुद तजुर्बा 17 साल से है एजुकेशन के रिलेटेड, नौजवानों को हम तालीम भी के सिलसिले में, मगर अब देख रहा हूँ कि एजुकेशन डिग्री होने के बावजूद वो ऐसा काम नहीं कर रहे जो उनके शान बशाना है। मगर ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ सेक्टर्स हैं वहाँ जॉब्स नहीं है। अब क्या हो रहा है सिचुएशन के सबसे जो बिगेस्ट ग्रोथ एरिया है ना वो टेक्नोलॉजी में, वहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कई रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको फैक्ट्स उसको बताता हूँ कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन जॉब्स अवेलेबल इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर और जिसमें 500,000 जो है ना वो डेटा में है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने लोगों ने सुना हुआ। और ये दिस इज़ द फ्यूचर और यहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। मगर क्या हो रहा है कि वहाँ जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनके पास स्किल्स नहीं है जो वैकेंसीज हैं उसको जो फिल कर सके। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ और ये फैक्ट्स ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसके दिए हुए, ये खुद ऐसे लोकल नहीं है। पहली बात है कि जो फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, यानी जो आज तरह के काम हैं वो 10-15 साल में नहीं होंगे। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब। पहला फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से है कि 65% ऑफ टुडेज स्टूडेंट्स विल एंड अप वर्किंग इन जॉब्स दैट डोंट इवन एग्जिस्ट। 65%, ठीक है ना। एक और यहाँ यूके गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी जो है ना उसकी रिपोर्ट है कि 90% ऑफ ऑल जॉब्स रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल स्किल्स। 90% ऑफ जॉब्स है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि 10 टॉप इमर्जिंग जॉब्स है ना दे ऑल डेटा रिलेटेड है ना, जिसमें डिजिटल स्किल्स आती हैं। और एक और लास्टली है कि जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है ना उसकी रिपोर्ट है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में सबसे बिगेस्ट ग्रोथ है ना वो टेक्नोलॉजी में होना है और उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो ना इस ऑल डेटा साइंस जॉब्स। अब स्किल मिसाल तो जॉब्स है मगर उनके पास है ना स्किल आदमी नहीं है, तो कंपनीज क्या कर रही हैं वो बाहर जा रही हैं, दे आर गोइंग अब्रोड एंड गेट द टैलेंट। तो हमने एज ए काउंसलर भी हमारी कोशिश होती है, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि व्हाई डोंट वी अप स्किल आवर यंग पीपल हियर। तो हमारा इंस्टीट्यूशन का मकसद ये है कि हम उनको डिग्रीज के साथ बाद हम उनको बूट कैंप होते हैं, 3 महीने का 4 महीने का इंटेंसिव कोर्स कराते हैं ताकि वो उनके स्किल्स हो, आपके द मार्क्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके होते हैं और उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं और जब वो कर ले हम उनको कनेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ और ताकि जॉब्स ले सकें। और एक और फैक्ट्स आपको बताऊँ कि यहाँ जो ये हो रहा है ये बताया कि जॉब्स जो है ना सैलरीज है ये सिंपल प्योर इकोनॉमिक है, सप्लाई एंड डिमांड। ये पूछना चाह रहा था कि इनकी जो सैलरीज हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सैलरीज जो है ना दे आर 70% अबव एवरेज सैलरीज इन द यूके, 70% अबव एवरेज। सो टिपिकली आपने पूछा कि कौन सी स्टार्टिंग क्या है, सो टिपिकली ये होगी कि एनीथिंग बिटवीन 30-35 से स्टार्टिंग सैलरी, विच इज़ अ ग्रेजुएट सैलरी इज़ अ गुड सैलरी। मगर ये होता है कि जब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो यू कुड बी रीचिंग अप टू 50। हाँ जी, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है यू बी टचिंग 100+, राइट। तो ये जो आपकी जो है ना ग्रेजुएट असेंट जो है ना बहुत जल्दी होती है और किसी फील्ड में यकीन करें ऐसे नहीं होती जिसमें टेक्नोलॉजी फील्ड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप डॉक्टर्स भी हैं ना, आप कंसल्टेंट भी बन जाए तो टिपिकली आपकी सैलरी इनकी सैलरी उनसे भी ज़्यादा होती है। आप घर बैठ के जो है ना आप ले या कह रहे हैं कि आपका खर्चा भी कम हो जाता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी नहीं है, आराम से फैमिली टाइम भी आप ज़्यादा गुजार सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में मल्टी कल्चरल सोसाइटी एडनबरा के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई जिसमें कम्युनिटी रहनुमा मियां इरशाद अहमद को पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। देखेंगे चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट।
स्कॉट लैंड के शहर एडनबरा में मल्टी कल्चरल सोसाइटी के जेर एहतमाम पुरवकार तकरीब, ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की भरपूर शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी मियां इरशाद अहमद, चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा थे। पुरवकार तकरीब में चेयरमैन मल्टी कल्चरल सोसाइटी चौधरी अब्दुल हमीद, चेयरमैन नडरी मस्जिद चौधरी एजाज नजीर, चेयरमैन अदबी डेरा चौधरी ताहिर बशीर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने मियां इरशाद अहमद को चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा मुंतखब होने पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की। शुरका ने पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा के पिछले 40 साल खिदमात को भी सराहा। तकरीब से खिताब करते हुए मियां इरशाद अहमद ने यकीन दिलाया कि वो बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान सोसाइटी एडनबरा कम्युनिटी की खिदमात का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। 40 साल खिदमात पर कम्युनिटी ने सोसाइटी को सराहा है, जिस पर वो तकरीब के मेजबान चौधरी अब्दुल हमीद समेत दीगर कम्युनिटी शख्सियात के शुक्रगुजार हैं। ताहिर बशीर, चेयरमैन अदबी डेरा का कहना था कि दियारे गैब में रहते हुए हम अपनी सकाफत और रवायात को कायम रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। मैं एडनबरा की कम्युनिटी को श्योर करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कुव्वत के साथ कम्युनिटी की खिदमत करूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान सोसाइटी दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की करेगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ जमा हुए हैं चौधरी इरशाद को मुबारकबाद देने के लिए कि वो पाकिस्तान सोसाइटी के चेयरमैन मुंतखब हुए और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए मसाइल और हमारी कम्युनिटी के मसाइल हल करने के लिए काम करेंगे। मियां इरशाद साहब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਈਸਟ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ इरशाद साहब दी इंशाल्लाह बड़े कामयाब होने दे चीज़ दे वैसे भी ਉਹਦੀ बड़ी सपोर्ट करांगे। इरशाद अहमद साहब के इंतखाब पर हम बहुत खुश हैं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला उनको खैरियत से इस काम को आगे बढ़ाएं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गेट टुगेदर थी, ज़बरदस्त खाना और बहुत बहुत शुक्रिया हमीद साहब का फिर एक दफ़ा कि सब साथियों से मिलवाया। आखिर में तकरीब के मेजबान चौधरी अब्दुल हमीद, चेयरमैन मल्टी कल्चरल सोसाइटी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। भरपूर मेहमान नवाजी के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। एडनबरा में मल्टी कल्चरल सोसाइटी के चेयरमैन चौधरी अब्दुल हमीद की तरफ से मियां इरशाद अहमद को पाकिस्तान सोसाइटी का चेयरमैन बनने पर एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड की सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। खालिद पेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। ब्रेडफोर्ड में कायदे-ए-आज़म संडे क्रिकेट लीग की 43वीं सालाना अवार्ड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। तफसीलात बताएंगे वकार बाबर अपनी रिपोर्ट में। क्रिकेट के दीवाने आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में क्रिकेट को बेहद पसंद किया जाता है। इसी हवाले से ब्रेडफोर्ड में कायदे-ए-आज़म संडे क्रिकेट लीग की 43वां सालाना अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया गया। क्रिकेट तकरीब में मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके खिलाड़ियों के हौसले बुलंद किए। तकरीब में ब्रेडफोर्ड के चारों डिवीजन और T20 कप की फातेह टीमों को ट्रॉफियां दी गयी, जबकि मुख्तलिफ शोबों में इनफरादी तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को अवार्ड भी दिए गए। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन का कहना था, कायदे-ए-आज़म लीग के जरिए खिलाड़ियों को अपने नाम बनाने के साथ साथ बानिए पाकिस्तान से अकीदत के इजहार का भी मौका मिलता है। उनका मजीद कहना था, बरतानिया में क्रिकेट और दीगर खेलों में नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए इम्तियाजी सलूक और तासुब जैसे मसाइल का तदारुक नहायत जरूरी है। जबकि एग्जीक्यूटिव कमेटी का कहना था कि कायदे-ए-आज़म क्रिकेट लीग बरतानिया की सबसे पुरानी एशियन लीग है, जो 4 दहाइयों से क्रिकेट और यकजहती के फरोग में अहम किरदार अदा कर रही है और नौजवानों को क्रिकेट की तरफ रागिब कर रही है। वकार बाबर, नुमाइंदा 92 न्यूज, ब्रेडफोर्ड। बरतानिया में पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कायम तंजीम ग्लोइंग स्टार्स आर्ट एंड कल्चर की जानिब से तकरीब का एहतमाम, जिसमें मैनचेस्टर की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत नैना रानिया खान को बांग्लादेश में साउथ ईस्ट एशिया में टॉप 10 अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की गई। पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में।
मैनचेस्टर के मकामी रेस्टोरेंट में ग्लोइंग स्टार्स आर्ट एंड कल्चर की जानिब से CEO मुकद्दस मजीद ने मैनचेस्टर की समाजी और कारोबारी शख्सियत नैना रानिया खान को शानदार इस्तकबालिया दिया। नैना रानिया खान को बांग्लादेश में बिजनेस वुमेन और साउथ ईस्ट एशिया में 100 पावरफुल खवातीन में टॉप 10 खवातीन में आने पर अवार्ड से नवाजा गया, जिस पर ग्लोइंग स्टार्स आर्ट एंड कल्चर ने उनके एजाज में इस्तकबालिया का एहतमाम किया। नैना रानिया खान की हाल आमद पर उन्हें फूल पेश करके शानदार इस्तकबाल किया गया। अपने खिताब में ग्लोइंग स्टार्स आर्ट एंड कल्चर का शुक्रिया अदा करते हुए नैना रानिया खान और सदर PTI नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट ने साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक में खवातीन की एम्पावरमेंट और उनके हकूक के लिए मजीद काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि खवातीन अगर अपने घर को बखूबी चला सकती हैं तो वो घर से बाहर दूसरे शोबों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती हैं। तकरीब के मेजबान मुकद्दस मजीद ने खिताब करते हुए तमाम शुरका खास तौर पर नैना रानिया खान का उनकी आमद पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए नैना रानिया खान, नुगमाना कंवल, शेख आसिफ भट्ट और दीगर शख्सियात का कहना था कि ये एजाजात पाकिस्तानी कम्युनिटी का सरमाया हैं। खवातीन को घरेलू कामकाज के साथ साथ माशरे की तरक्की में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। खवातीन को इंस्पिरेशन मिली कि ऐसी खवातीन भी हम लोगों में मौजूद हैं जिनको ये मिशले राह है हम सबके लिए, और उनकी हार्ड वर्क और उनकी मेहनत ने उनको यहाँ तक पहुँचाया है। औरतें भी कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हमारे ज़हनों में यही है कि मर्द जो हैं वो बाहर काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, और औरतें घर में बैठ के खाना बनाती हैं। जबकि उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन को यूज़ किया और आज एक कामयाब बिजनेस लेडी पे अपने आप को मनवाया। और मैंने स्पेशल इसीलिए प्रोग्राम उनके लिए रखा था ये कि हमारे बाकी औरतों को भी ये देखना चाहिए और सीखना चाहिए, इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि इन्होंने कितने हर्डन के बाद, कितनी मुश्किलों के बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं। और इन्होंने आज कामयाब 10 टॉप 10 में से अवार्ड लेके आई। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की CEOs, फार्मास्यूटिकल, इनोवेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी कंपनीज, बिजनेस कंपनीज, उन सब की औरतें रिप्रेजेंटेड हुई थी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, 8 डिफरेंट नेशंस। एंड जहाँ तक मेरा सवाल है वो ये है कि 8 डिफरेंट जजेस फ्रॉम 8 डिफरेंट कंट्रीज थ्रू एवेल्युएशन, क्रिटिकल एवेल्युएशन, सारी बैकग्राउंड रख के, हमारी अचीवमेंट्स रख के उन्होंने उनके पैनल जजेस ने डिसाइड किया कि I am the recipient of this award. She did a speech as well, and which is very inspirational, and I think for all women it should be a good motivation to come out of your houses and do something, because women should take empowerment as well. And I think that nowadays it is very important for men and women should be working equally, and I think she did a very good inspirational speech, and we should take a lesson out of it. मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ नीना खान को, जिन्होंने वुमेन पावर का बांग्लादेश में अवार्ड हासिल किया। और मैं ये समझता हूँ कि औरतों को आगे आना चाहिए, आगे आकर जो ख़वातीन को बाख्तियार भी होना चाहिए, और इसके अलावा जो इस मुल्क में तरक्की के लिए और जॉब्स हों और स्किल्स हों और सियासत हो। तकरीब में अरशद जवेद, राशिद अरशद, मारूफ शाह, समीना खान, कोमल खान, साहिर अली, नसीन कौसर, अता मुस्तफ़ा चौहान, महमूद असगर चौधरी ने खसूसी शिरकत की। जबकि तकरीब की नकाबत के फ़राइज़ अदील चौधरी ने शानदार तरीके से निभाए। आखिर में ग्लोइंग स्टार आर्ट एंड कल्चर और अरशद जवेद की तरफ से नैना रानिया खान को खसूसी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तानी राइटर और मुसन्निफ सुलेमान अहमद की किताब की रूनुमाई भी की गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। वक़्त खानम अस्पताल कराची के क़याम के लिए ह्यूस्टन में फंड रेजिंग तकरीब का अहतमाम, जिसमें मुमताज़ कम्युनिटी रहनुमा सज्जाद बरकी और आतिफ खान समेत दीगर अफराद ने बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए। 1 घंटे में $13 लाख के एहतियात जमा हुए। मुमताज़ कारोबारी शख्सियात जावेद अनवर ने $5 लाख, तनवीर अहमद ने $3 लाख और फुरकान काका ने $1 लाख के नकद एहतियात दिए। अस्पताल के उमूर पर तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी गई। तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल के क्याम के लिए ह्यूस्टन में फंड रेजिंग का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। मुमताज कम्युनिटी रहनुमा सज्जाद बरकी और आतिफ खान समेत दीगर अफराद की कोशिशों से 1 घंटे में $13 लाख की खतीर रकम जमा की गई। मुमताज कारोबारी शख्सियात जवेद अनवर की जानब से $5 लाख, तनवीर अहमद की जानब से $3 लाख और फरकान काका की तरफ से $1 लाख के नकद अतियात दिए गए। इस मौके पर शौकत खानम हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ से हॉस्पिटल के अमूर पर तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कराची में शौकत खानम हॉस्पिटल आइंदा साल दिसंबर में पाया तकमील को पहुंचेगा, जिस पर $122 मिलियन खर्च होंगे। आप
اکثر جن لوگوں کے لیے ڈونیٹ کر رہے ہیں یا کریں گے یا کرتے آئے ہیں، آپ نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں، نہ کبھی دیکھیں گے، نہ وہ آپ کے سامنے کبھی آئیں گے. تو یہ اس ان سین شخص کے لیے جب آپ ہیلپ اور ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی ہی ایک زبردست انسانی فیلنگ ہے، اور آئی تھنک دس از دا اسپرٹ آف شوکت خانم. فنڈ ریزنگ سے خطاب کرتے ہوئے معروف پاکستانی امریکی بزنس مین جوید انور نے کراچی میں شوکت خانم ہاسپٹل کے قیام کو ضرورت مند افراد کے لیے قابل تحسین اقدام قرار دیا. اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا ویڈیو پیغام بھی بڑی اسکرین پر دکھایا گیا، جس میں انہوں نے اوورسیز کمیونٹی سے نیکی کے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی. آپ سے وہ ڈونیشن چاہیے جو پہلے سے بھی زیادہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بارے آپ کا دل کھول کے ڈونیشن، اور وجہ پہلے تو یہ کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے. جب ہم نے ہاسپٹل شروع کیا تھا مشکل سے سب 13-14 کروڑ لوگ تھے، اب 22 کروڑ سے بھی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. تو اس بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے 2 ہاسپٹل تو کافی نہیں ہے، یہ 300 بنے گا، اور اس کے لیے ہمیں آپ کے ڈونیشنز کی ضرورت ہے. تقریب میں ممتاز سیاسی تجزیہ نگار اور اینکر پرسن ڈاکٹر معید پیرزادہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تقریب کے اختتام پر پاکستان کے ممتاز گلوکار علی عظمت نے اپنی دلکش گائیکی سے لوگوں کو خوب محظوظ کیا. تقریب میں کمیونٹی کی خواتین نے بھی بھرپور عطیات دیے. کئی خواتین نے اپنے زیورات شوکت خانم ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے عطیات کرنے کا بھی اعلان کیا، جسے کمیونٹی نے بے حد سراہا. خرم شہزاد، 92 نیوز، امریکہ. دبئی حکومت کی جانب سے بلاک چین اور ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی حیثیت ملنے کے بعد بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل کرنسی کی لانچنگ کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. دبئی میں بلینز بلاک چین، بلینز ایکسچینج اور MDR اکیڈمی لانچ کر دی گئی. لانچنگ کی میگا تقریب میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چائنا، برطانیہ اور UAE سمیت مختلف ممالک کی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. امارات کی ریاست دبئی ڈیجیٹل کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ میں بھی پیش. حکومت کی جانب سے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے نئے قوانین متعارف. دنیا بھر سے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی میں سرمایہ کرنے والی کمپنیز نے دبئی کو اپنا مسکن بنا لیا. معروف نجی کاروباری گروپ نے مقامی قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دبئی میں بلینز کے نام سے بلاک چین اور ایکسچینج اور MDR لانچ کر دی. ڈیجیٹل کرنسی لانچنگ کے میگا ایونٹ میں ہز ہائنس شیخ جمعہ بن مکتوم المکتوم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور پرائیویٹ ایڈوائزر ہز ایکسیلنسی یعقوب العلی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. جبکہ اس میگا تقریب کے گیسٹ آف آنرز ہز ایکسیلنسی ولید ابراہیم حسن العلی اور چیئرمین بادشاہ گروپ سعید بن محمود تھے. تقریب میں ڈیجیٹل کرنسی سے منسلک افراد اور بڑی تعداد میں کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. بلینز بلاک چین اور ایکسچینج کے فاؤنڈر سید اشفاق بخاری، زبیر اجاز بٹ، انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر پروفیسر محمد عبدال نجیب، سری لاکھن سنگھ، شاہد اسحاق، راجیو ورما، اگنی وش سونی، نیرج شرما، سمیر دھمر سمیت دیگر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے لیے جدید دور کے تقاضوں کو اپنانا ہوگا. ڈیجیٹل کرنسی وقت کی ضرورت ہے. دنیا ڈیجیٹل کرنسی کی جانب شفٹ ہو رہی ہے. بڑے بڑے ممالک اب اپنے بینکنگ سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. بلینز ڈیجیٹل ایکسچینج کے فاؤنڈرز اور دیگر شخصیات کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں پیسوں کی لین دین، کاروباری معاملات چلانے اور شاپنگ کرنے کے لیے اب کرپٹو کرنسی کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور دیگر ایشیائی ممالک کی حکومتوں اور کاروباری کمیونٹی کو بھی بلاک چین ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا. UAE کی معروف کاروباری اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی نئی کرنسی کے اجراء کو خوشائند قرار دیا اور بلینز ایکسچینج اور بلاک چین کے فاؤنڈرز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی سمیت اب میٹاورس کے فروغ میں بھی دبئی اہم کردار ادا کر رہا ہے. My blockchain is based on a technology called POA, Proof of Authority, and that's the most reliable and the secure technology on earth. Well, of course, everybody knows about blockchain, and a lot of people bought also. Even I have bought also, but inshallah, it comes up, down and goes up. So it's always in business is there, of course. I wish everybody all the best. We wish you best of luck on this journey, and as I told him that we will be part of it. شرکا کا کہنا تھا کہ بلاک چین دنیا کا مستقبل ہے اور دبئی ہر سیکٹرز کی طرح اس میں بھی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مقام بن چکا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات.